हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण चैप्टर राजनीतिक विज्ञान की ये चैप्टर जो है हर क्लास के हर बोर्ड के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनके सिलेबस में ये टॉपिक है। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today I have a most important topic doing here, the meaning and significance of adult franchisee. What do you mean to the significance adult franchisee here? The franchisee is the right of the people to the vote, elect their representative is called franchisee. Their word franchises derive from to the French word franc, which mean to the free. It mean free exercise of the right to the choose one representatives. The adult franchisee means that the right to vote should be given to the all adult citizens without the discrimination of the caste and class, color and religion or sex. There is a adult franchisee. There is no discrimination against to the caste, colors and religion and sex. It is based on the equality, which is a basic principle of democracy. It is a demand that the right to be a vote should be equally available among all. To a den and class of person for exercising the right is too volatile. There is a right to be equality. In fact, the spirit of democracy can maintain it only if the people are given the right to vote without any discrimination. The exercise of the right to vote is to be individually as self-respect, unity and sense of responsibility, and the political and civil education. In other words, the system of the adult franchisee is the bedrock of a democratic system. People is called to the politically slogan is because they oppose the right to be a vote or government into power, or to be vote a government out of the power. And what is a democracy sometimes has been described as a mode of the appointings of controlling and dismissing as government by the people. As approved for in the constitution of the land, the citizens cast their vote at a regular interval to select their representative to a parliament, to the legislative assemblies and such that institutions as the external organ of political power in a democracy. This institution is called representative institution and precisely because they are present the will of the peoples. यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर आया है, जिसमें व्यास मताधिकार के ऊपर चर्चा की जा रही है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो यही पॉइंट आया कि व्यास मताधिकार का अर्थ एवं महत्व। देखिए, भारत जो है एक डेमोक्रेसी कंट्री कहलाती है, यानी जो यहाँ प्रजातंत्र कहलाता है। तो भारत में इस बात का जो है प्रावधान किया गया कि एक व्यास मताधिकार का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो व्यास मताधिकार जो था 18 वर्ष आयु को लिया गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। सरकार ये सोचती थी कि जिस व्यक्तियों को जो 18 साल उम्र हो जाता है वो काफ़ी समझदार और अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए सशक्त हो जाते हैं। तो इसीलिए इन्होंने व्यास मताधिकार का जो है एक प्रावधान किया, और इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट जो हमारा आया है व्यास मताधिकार का अर्थ एवं महत्व। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा कि व्यास मताधिकार का अर्थ क्या होता है, ठीक है, और ये हमारे जो है डेमोक्रेसी कंट्री में किस प्रकार महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। तो चलिए इस बात को जाने कि जो है व्यास मताधिकार का अर्थ क्या होता है। जनता द्वारा वोट डालने तथा अपने प्रतिनिधि चुनने के अधिकार को ही व्यास मताधिकार कहते हैं। यानी जनता द्वारा जो वोट डाली जाती है, ठीक है, और अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, उसे व्यास मताधिकार कहते हैं। और वयस्क मताधिकार जो दिया जाता है जो 18 वर्ष आयु अपना पूरा कर चुका हो, ऐसे व्यक्तियों को जो है मत डालने का अधिकार प्रदान किया जाता है, जिसे अंग्रेजी में हम एडल्ट फ्रेंचाइज भी कहते हैं, या एडल्ट फ्रेंचाइज के नाम से जाना जाता है। फ्रेंचाइज शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा की जो फ्रेक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र यानी फ्री। देखिए, व्यास मताधिकार का मतलब यही होता है मताधिकार, यानी अपना मत आप दे रहे हो वो भी स्वतंत्र रूप से। इस तरह जो मताधिकार का अर्थ स्वतंत्रपूर्वक अपने प्रतिनिधि का चुनाव करना होता है, यानी आप अपना जिसको भी प्रतिनिधि बनाना चाहते हो उसको जो है आप फ्री मन से उसको चुन सकते हो। यही नहीं, राजनीतिक समानता जनता का मूल सिद्धांत माना गया, और इसके लिए जरूरी है कि
व्यक्तियों के मत को सामान्य महत्व प्रदान किया जाए, यानी प्रत्येक व्यक्ति के जो है मत का सामान्य जो है महत्व देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि किसी व्यक्ति को से किसी विशेष समुदाय से संबंधित होने के नाते उसे मताधिकार से वंचित किया जाता है तो उसे जो है समानता के अधिकार का हनन होगा। तो बात तो सही है कि कोई व्यक्ति अगर मत देना चाहता है और उसको मत से वंचित किया जाता है तो ये समानता का अधिकार का हनन होता है। दूसरे शब्दों में जनता की आत्मा तभी सुरक्षित रह सकती है जब तक कि जनता के बिना किसी भेदभाव, सामाजिक, आर्थिक, राजनीति के वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो। तभी जो है हमारा भारत जो है गणतंत्र बन सकता है, तभी हमारा जो है सभी जनता को सुरक्षित भी निश्चित हो सकता है। क्योंकि देखिए कहते हैं वोट डालने का जो अधिकार है हमें जन्मसिद्ध अधिकार दिया जाता है कि हम जो है अपना प्रतिनिधित्व स्वयं ही चुने, ठीक है। और इसके लिए अगर कोई इसका हनन करता है तो इसका मतलब है कि आपका अधिकार का हनन हो रहा है। नागरिकों द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने तथा अपनी पसंद की सरकार का चुनाव करने की प्रणाली को जो है चुनाव कहा जाता है। प्रतिनिधियों के चुनाव के संबंध में यह भी विधान बनाई गई है कि संसद तथा विधान मंडलों के प्रतिनिधियों की चुनाव प्रक्रिया एक निश्चित समय तक ही लागू रहती है, जिसके द्वारा जनता की शक्तियों का महत्व और नीतियों की निर्धारण में उसकी जो है हिस्सेदारी बनाए रखने की कोशिश भी किया जाता है। The next topic is most important here, universal adult franchise. It's a evolution. There is a most important topic here, universal adult franchise. It's a evolution. Historically, adult franchise has been slow in making itself a universal law. In fact, one of the major demands in the long drafts of struggle for democracy in the world has been a acceptance of the principle of universal adult franchise. As the basis of the great things, there is a basis of people till the second decade of the 12th century. Not all these countries were practicing of universal adult franchise. Many democratic systems had restricted to a male franchisee only based on the property, education, and other qualification. It is interesting to note that most of the Western countries, which are known for there is a long experience of some sort of representative system of governance. Indeed, adult franchise only in the work of the First World War is in 1914 to 18, a war which is the proclaimed to be fought by their allies to the power. The Great Britain is of France and United States and the Allies to make the world safe for a democracy. But well the defected is that Germany is incorporated the principle of the universal adult franchise in 1999. It took 9 more years of Great Britain of extended franchise to a woman in 1928. In 1918, Britain had granted to the franchise to the limited number of women. It was decided that all the adult men is 21 years of age above would be have to the right to the vote. There is a most important here. It is decided that the all adult man is 20 years of the age above would be have to the right to the vote, and women only above the age of 30 years could be post. There is a right to the vote. There is a most important is a point here. Is a 21 of the man is a and 30 years is a woman is a right to the vote. This discrimination was removed only in the 1928, but there is a removed discrimination is the 1928. There is a most important here. The France, the land that is a gift to the popular slogan of liberty, equality, and fraternity, could be introduced the right to the universal adult franchise to its people only after the end of their Second World War. 1945 equal stands in the fact that Switzerland, the home of is a direct democracy, denied the right to vote to women till 1973. India adopted the principle of universal adult franchise when the present of constitution was enacted in 1949, which has known as the implemented on January 26, 1950. And the next topic is age of voting. The voting age the varies from the country to the country. In a Denmark of Japan, a person, man and woman is entitled their vote after standing the age of 25 years. In Norway, there is a age limit is a 23 is a Great Britain. The United States is a Russian and Turkey it is a 18 year.
In a Switzerland, it is a 20 years. In our country now, to minimum age for the exercising a franchise is a 18 years. The 61 first is amended Act of 1989 lowered their voting age from 21 to 18. There is a contained here qualification is a present bid for the vote of India. As you already read, a voter must be a citizen of India and must have attained to the 80 years of age and must not be unsound mind and must not has been to the declare of bankrupt by the competent court. यहाँ पर हमारे समक्ष जो आया है सार्वभौमिक व्यास मताधिकार। देखिए, सार्वभौमिक व्यास मताधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है क्योंकि इसमें हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। देखिए, कहते हैं अगर वोट देने का अधिकार अगर हमारे देश में जो है व्यास मताधिकार के रूप में दिया गया है तो इसका अपना एक विशेष महत्व है, ठीक है। और इसमें जो है कुछ महिलाओं के प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन की गई थी, भेदभाव की गई थी, उस पर जो है यहाँ पर करारा चोट भी किया गया है। कहते हैं सार्वभौमिक व्यास मताधिकार का अर्थ यही है कि हर व्यास महिला या पुरुष को बिना किसी भेदभाव को वोट डालने का अधिकार प्रदान करना। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे सार्वभौमिक का मतलब यही होता है, सब मतलब कि कोई भी व्यास हो, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों को जो है वोट डालने का अधिकार प्रदान है, ठीक है। इस प्रणाली के अधीन एक जो है निर्धारित आयु के पश्चात व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार प्राप्त होता है। यानी इसके रिगार्डिंग अगर देखा जाए सार्वभौमिक व्यास मताधिकार के, तो कहते हैं एक निश्चित आयु होती है जहां पर जो है वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। व्यास मताधिकार ने धीरे धीरे स्वयं ही एक सामूहिक कानून का रूप ले लिया और शुरू में वोट डालने का अधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों को प्राप्त था जिसके पास या तो अचल संपत्ति हुआ करती थी अथवा जो सरकार को कर देते थे। यानी पहले के समय ये प्रावधान की गई थी कि जिनके पास काफ़ी संपत्ति हुआ करता था और जो सरकार को कर देते थे वही व्यक्ति वोटिंग कर सकते थे। तो ये प्रावधान जो कहते हैं अमीर लोगों के लिए ही था और अमीर लोग ही सिलेक्ट होते थे। तो ये बात तो जनरल उस समय थी। कहते हैं अगर हम बात करें आगे तो ये काफ़ी एक अलग बात यहाँ पर सामने आई थी। कहते हैं कुछ देशों में तो सिर्फ पुरुषों को ही वोट डालने का अधिकार प्राप्त था, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई देश में ये देखा गया कि पुरुषों को ही वोट डालने का अधिकार प्राप्त था और इसके विपरीत कहते हैं अब सभी जो है व्यस्क व्यक्तियों को संपत्ति अथवा शिक्षा के आधार पर किसी भेदभाव के बिना वोट डालने का अधिकार प्रदान किया गया, जिसे मानवीय अधिकार कहा गया। और काफ़ी समय तक यहाँ तक कि विकसित देशों ने भी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया था, यानी महिलाओं को नहीं दिया गया था। ये बहुत बड़ी सभी देशों के लिए विडंबना थी। 20वीं सदी के दूसरे दशक तक किसी भी देश में सार्वभौमिक जो है व्यस्क मताधिकार लागू नहीं किया गया। तो ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात थी जिसको ये लागू नहीं किया गया। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये थी कि स्त्रियों से भेदभाव किया जाता था, यानी उनको वोट देने का अधिकार छीन लिया गया था। लेकिन कहते हैं समय का पहिया हमेशा बदलता रहता है और चलता रहता है, फिर जाके बहुत कुछ बदलाव हुआ जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे। कहते हैं सबसे पहले जर्मनी में 1919 में सार्वभौमिक व्यास मताधिकार का सिद्धांत लागू किया गया था। कभी एग्जाम में भी आ जाता है या एमसीक्यू में भी आ जाता है या कोई भी एग्जाम आप जो अटैम्प्ट कर रहे हो उसमें आ जाता है कि सबसे पहले सार्वभौमिक व्यास मताधिकार सिद्धांत कहाँ लागू किया गया था। तो आपको याद रखना चाहिए कि जर्मनी में 1919 में जो है लागू किया गया था और 1918 में ब्रिटेन में कुछ सीमित महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। देखिए, इसको देख के जो है ब्रिटेन में भी कुछ महिलाओं को, जो चुनिंदा महिलाएं थे, उनको जो है वोट देने का अधिकार दिया गया। धीरे धीरे 21 वर्ष से ऊपर के पुरुषों तथा जो है 30 वर्ष से ऊपर की स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार प्रदान किया गया। किंतु 1928 में इस भेदभाव को काफ़ी सुधारा भी गया। और कहते हैं 1936 में जो सोवियत संघ में जो है सार्वभौमिक व्यास्क मताधिकार के सिद्धांत को लागू भी किया गया। यानी देखा जाए 1926 में जो है सोवियत संघ ने भी सार्वभौमिक व्यास्क मताधिकार को सिद्धांत को लागू किया। किंतु यह आश्चर्य की बात है कि लगातार उदारता और बराबरी के नारे लगाने वाला फ्रांस जो 1945 तक अपने नागरिकों के लिए व्यास्क मताधिकार के सिद्धांत का विरोध करता रहा। और इसे भी आश्चर्य की बात यह है कि स्विट्जरलैंड जैसे प्रत्यक्ष जनतंत्र वाले देश में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार के लेकर 1978 का जो है गतिरोध बना रहा। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि कहते हैं जो देश विकसित थी उन्होंने भी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं दी गई। तो इसमें बहुत बड़ी बात जो है निहित रहेगी। इस सब की तुलना में भारत में 1950 में जब संविधान लागू किया गया
तभी से जो है व्यस्त मताधिकार व्यवहार अपना दिया लिया गया, क्योंकि भारत को पता था कि जब तक कहते हैं ना कि जिंदगी के जो पहिए हैं दो से ही चलते हैं, पुरुष और स्त्री, कहते हैं दोनों को जब तक सामान्य दर्जा नहीं दिया जाएगा हमारा समाज जो है आगे प्रफुल्लित नहीं होगा। इसलिए भारत के जो महान थिंकनर थे उन्होंने इस बात को बहुत समझा और जोर दिया कि महिला को भी उतना ही अधिकार देना उचित रहेगा जितना कि जो पुरुष को प्राप्त है। उसके पश्चात है मताधिकार की आयु। देखिए अलग अलग देशों में वोट डालने का अलग अलग आयु निर्धारित की गई है। डेनमार्क और जापान में 25 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति ही वोट डाल सकता है, जबकि नॉर्वे में यह आयु 23 वर्ष की गई है। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन में, अमेरिका और सोवियत संघ में यह आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। हमारे देश में भी अब वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई है और इस प्रकार वे सभी स्त्री पुरुष जिनकी आयु 18 वर्ष है बिना किसी भेदभाव को वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। मताधिकार का प्रयोग करने के लिए निम्न जो है योग्यताओं का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो भारत का सबसे पहले तो होना नागरिक होना चाहिए, वो 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो या उस पर किसी प्रकार का जो न्यायालय द्वारा कोई कदम न चलाया गया हो। तो इस तरह से जो है वही व्यक्ति जो है जो वोट दे सकता है, जो ये सारी बातों को जो है उसको मिल रहा हो अधिकार। The next topic is methods of representation. The universal franchise is enable all the citizens to be involved in the governance of their state. They do so they are elected their representative and who govern to the serve and protect the interests of the people. There are two main methods of electing representatives and these are known as territory and functional representation. The first territory representation. This is the most is a method of electing to representative in the most of democratic country. In this system, all the eligible voters living in the specified area and voted to the elected their representatives. The total electorate of the country is irrespective of their is a professions or groups is divided into the territory continuous and which they elect on are more representative and the entire population is derived into the constituency with the more and less equal number of voters. The next is the function representation. The function representation means representative are elected by the various professional and functional group like industry worker, trading is a functionaries, medical practitioners and lawyer, teacher, transporter, etc. According to this method, is a separate is a constituency are there set of the people or belonging to the specific group. For example, there may be a constituency of the teacher who is elected their representative. The electorate of the professionally and the functionally categorized and each of professional categories is called upon to elect one or more representatives respectives on their place of residence in a country. Unlike the territorial representation, the electorate is not be divided on the basis of the territory is a constituency but is the base of their professions. It is a chain or representation of various occupational group. The next is a constituency. A body of voters who is elected to represent is known as the constituency. The body of voters may be belong to the particular geographical area. The constituencies for the Lok Sabha and the Assembly election consist of the voter of is a respective area. But the constituency for their election of President of Indian consists of member of parliament is the state assembly. There may be single member constituency or multi-member constituency. A single member constituency here when only one member is elected from to the constituency it is known as a single member constituency. For Lok Sabha election for the whole of India is divided into 543 single member constituency. There is a most important point here. Note down the Lok Sabha election to have the whole of India divided into the 543. Here is the single member constituency, and out of this 543 constituency, every state and union territory has a share of the content member of constituency. The system of single member of constituency is adopted in India
Britain, USA, Canada, Russia, Australia, Nepal, and Pakistan also. The next year, multi-member constituency. This system is known as the general ticket system. When more than one candidate are selected from the constituency, it is called multi-member constituency. Such a constituency is exit of Switzerland, Denmark, and Sweden and Italy. Is according to this system, the whole country divided into the large constituency and form of each constituency may be represented or elected. The political party get the seat in the proportion to be the votes their school of the constituency. And in multi-member constituency, usually the method of proportional of representation is adopted for a begin to elected and candidate has to be achieve a fixed quota of votes. The votes have to be voted for any representative as are there be selected from their respective constituency that indicate their order of performance against the name of the candidate and will be discuss the detail of their method when we study of proportionally representation. The people here and therefore exercise their right to vote according to the electoral system adopted to their respective countries. We shall discuss below the most important system. यहाँ जो हमारे समक्ष आया है इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। आखिर प्रतिनिधित्व की प्रणाली होती क्या है और इसका क्या है सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार में इसका स्थान। तो कहते हैं ये बहुत बात जो जानना बहुत काफ़ी रोचक रहेगा और समझ भी रहेगी कि आखिर प्रतिनिधित्व की प्रणाली क्या हमें बताने की कोशिश करता है। अगर यदि हम बात करें सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार, कहते हैं सभी नागरिकों को उनके राज्य के शासन में शामिल होने का अवसर देता है और वो अपना प्रतिनिधित्व भी चुनते हैं जो इन लोगों के अधिकार की रक्षा भी करते हैं। यानी कोई भी प्रतिनिधित्व अगर आप चुनते हो तो उसका एक ही कर्तव्य होता है कि वो नागरिकों का जो है अधिकार को जो है सुरक्षित मुहैया कराए। प्रतिनिधित्व के चुनाव के दो प्रमुख प्रकार होते हैं, एक तो होते हैं क्षेत्रीय और एक होते हैं कार्यकारी प्रतिनिधित्व। यानी दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ मान्यता रखता है। यहाँ पर अगर हम बात करें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की तो ये बात साफ जाहिर हो जाता है कि अधिकांश जो लोकतांत्रिक देशों में प्रतिनिधित्व चुनने का ये सबसे लोकप्रिय तरीका माना गया है और इसके अंतर्गत किसी भी क्षेत्र के विशेष के मतदाता अपने प्रतिनिधित्व चुनने के लिए मत भी डाल सकते हैं। निर्वाचन के लिए जो है संपूर्ण देश को क्षेत्रीय इकाई में बांटा भी जा सकता है तथा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को एक प्रतिनिधित्व भी चुना जा सकता है। संपूर्ण जनसंख्या को निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है जिसमें लगभग बराबर मतदाता होते हैं। तो ये इसमें बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि संपूर्ण जनसंख्या के निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है जिसमें लगभग बराबर मतदाता होते हैं। यहाँ जो अगला टॉपिक है कार्यकारी प्रतिनिधित्व, देखिए इसमें यही बात सामने आता है कि कार्यकारी प्रतिनिधित्व होती क्या है और उसका क्या अर्थ होता है। तो साधारण शब्दों में जानना चाहेंगे तो इसका यही मतलब होता है, कार्यकारी प्रतिनिधित्व का अर्थ यही निकलता है कि विभिन्न व्यवसायिक समूह के प्रतिनिधियों का चुनाव, जैसे कि औद्योगिक कर्मचारी हो गया, व्यापार जगत हो गया, वकील हो गया, अध्यापक हो गया, ट्रांसपोर्ट आदि। इस प्रकार जो है वर्ग विशेष से संबंधित लोगों के अलग अलग विविध इकाई बनाई जाती है। उदाहरणतः अध्यापकों का एक निर्वाचन क्षेत्र हो सकता है जो अपना प्रतिनिधि चुनते हों। निर्वाचन क्षेत्र के जो है व्यवसाय और कार्य के आधार पर वर्गीकृत करके उनका जो है प्रतिनिधित्व चुनने को भी कहा जा सकता है। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व कई तरह निर्वाचन क्षेत्रीय आधार पर नहीं बल्कि उसके व्यवसाय पर निर्भर करता है और यह एक ऐसा तरीका माना जाता है जिसके द्वारा विभिन्न व्यवसायिक समूहों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होती है। निर्वाचन क्षेत्र मतदाताओं का वह समूह है जो प्रतिनिधित्व के चुनता है और यह समूह किसी विशेष जो है भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित भी हो सकता है। लोकसभा तथा राज्यसभा के चुनाव में उन्हीं क्षेत्रों को मतदाता शामिल होते हैं, परंतु राष्ट्रपति के चुनाव में संसदों और विधानसभाओं में सदस्यों के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र होते हैं और एक सदस्यीय या बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे समक्ष यही आता है कि एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। देखिए, जब किसी क्षेत्र से केवल एक सदस्य का चुनाव किया जाए तो उसे एक सदस्य कहते हैं। यानी लोकसभा चुनाव में संपूर्ण भारत को जो है 543 इकाई में बांटा गया है और इन 543 क्षेत्रों में से प्रत्येक राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों में निश्चित इकाई होती है और एक सदस्यीय विधायक इकाई की प्रणाली को भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, रूस,
ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, पाकिस्तान में अपनाया गया है। यानी देखा जाए तो एक सदस्य पर निर्वाचन प्रणाली जो है कई देशों में अपनाया गया है, इवन कि भारत में भी इसको अपनाया गया है। उसके पश्चात बहुदलीय निर्वाचन क्षेत्र, देखिए इसका क्या अर्थ हुआ। इस प्रणाली के सामान्य टिकट प्रणाली भी कहते हैं। जब किसी निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक सदस्य चुने जाते हैं उसे बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। और इस प्रकार की प्रणाली स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन और इटली में अपनाई गई है। इस प्रणाली में संपूर्ण देश को विशाल निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है और प्रत्येक इकाई से कई प्रतिनिधियों को चुन लिया जाता है। राजनीतिक दलों को किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से प्राप्त मतों के आधार पर सीटें मिलती है। कहते हैं बहुसदस्यीय प्रणाली में अनुपातिक प्रतिनिधित्व अपनाया जाता है और निर्वाचन होने के लिए प्रत्याशी का निर्धारण मत प्राप्त करने होते हैं। मतदाताओं को उनके क्षेत्र से चुने जाने वाले सभी प्रत्याशी के लिए मत देने होते हैं। प्रत्याशी के नाम के आगे वे अपना मत अंकित करते हैं और इस तरीकों का जो है व्यापक अध्ययन आप जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाले अध्ययन में करेंगे। इस प्रकार किसी देश में प्रचलित निर्वाचित प्रणाली के अनुसार लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। अब हम निर्वाचन संबंधी मुख्य प्रणालियों का यहाँ पर अध्ययन करने की कोशिश करें। अ सिंपल मेजोरिटी सिस्टम, देयर इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंपल मेजोरिटी सिस्टम मीन दैट केस ऑफ अ सिंगल मेंबर constituency the person or the candidate is getting to the highest number of vote is declared elected. The result is decided by the majority of the votes and secured by a candidate. Many a time in the system there is a multi-coordinate contest as the number of candidate is more than 2. There are the case of 4 or 5, even more than is a 5 candidate is a contest. In such a situation, a candidate with even less than 50% of the total votes get elected. Such cases are very often to be found in India and elsewhere. The system of simple majority system is prevalent in the Britain, USA, Canada, and some other countries. The simple majority system is also called to the first past the post system. Member of our Lok Sabha and State Assembly are elected by this system. The most important topic here arrive. There is a proportional is a representation system. What do you mean to the proportional representation system here? The system of proportional representation is the elected device to be ensure the representation for all section of the people more or less is a proportion their voting strength. Under this system, any group, whether it is a political party or interest group, will be insecure the representation is a proportion to the popular vote it is obtained. J.S. Mill was ardent to the advocate of proportional is representation. He said, in any real equal democracy, every or any section would be represented not disproportionately, but the proportionality is a majority of the elector would be away have a majority of representatives, but a minority of elector would be away have a minority of representative. This system ensures that the number of seats a political party get in a legislatures is the should be in a proportions to be support of the popular vote. Sometime in the simple majority system, it is a seen that is a party get a more seat in the legislatures even though it is a receive less percentage of votes or a candidate with a even less than 50% of votes is a declared elected. For instance, is the India in 1970 Lok Sabha election, Congress polled only 76% of vote and it is a manage of 351 seats out of the 522 seats. And that is even with the less than 50% votes, Congress won to the 68% of the seat in the Lok Sabha. This limitation of the first past and their post system may be removed through the proportional to representation system. There are two methods by which is a proportional representation is secured. First here the single transferable vote system. It is also called to the Hare system of the entrance schemes. According to the single transferable vote system, each voter can be cast only one vote which can be transferred to other candidates.
if necessary according to the fairness of the voter. Therefore, this system is also called the professionalist system. This system works under following condition. The first condition here, every constituency should be a multi-member constituency electing 3 or more members. And second here, a voter has only single effective vote which may be a cast the other to the preference of first, second, third or may be preference, and there is the candidate. The voter right to the 1, 2, 3 and 1 there against the name of the candidate of his choose. But the voter cannot be cast all the preference in the favor of only one candidate. In order to be elected to a candidate must be score a contain quota of votes. The quota is determined by dividing the total votes cast by number of seats in the constituency. There is a quota here. A formula arrived. The total number of votes polled and total number of the seat in the constituency plus 1. There is a formula here. For instance, if a number of seats in a constituency is a 3 or total number of votes cast is a 12,000, the quota will be. The counting of votes began with the first performs votes. A candidate secured to the prescribed quota is the basis of the first performance vote in a declared elected and his the scrubs votes. If any are transferred to be a candidate having second preference or indicated on the ballot paper and so on. If one or more seats are left vacant because some candidates do not score the required quota, the candidate getting to least number of votes are eliminated and their votes are transferred according to the preference of the voter. And this system has adopted in India for the election of the member of the Rajya Sabha and the state legislative council. The method is also followed for the election of President of India. And the next here, list system. This is another method of proportional to the representation under this system. Large multi-member constituencies are formed and any candidates are elected from each constituency. Each political party is submit a list of the candidate for the election from a particular constituency. A voter votes not be individually but it is a list of the candidate of different is a political party. These votes are indivisible if your 4 representatives are to be elected from the constituency. The voter has no option to cast 2 votes on the one list, 2 on the other list. These voters have to be elected all the 4 candidates from either of the list. A quota is determined and the candidates are declared elected according to the quota votes is squared by the political party. A party entitled to be 3 seats according to the quota will be declared the first 3 candidates on it is a list elected. There are 2 forms of the list system, the bonded list and the free list. And in the bonded list, the voter no choose or expect to the endorse or reject the entire list of candidates and prepared by a political party. But in a free list, their voters will be electing their list can give his over one order to performance for the candidate. The list system is followed by the election in a Switzerland. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, सामान्य बहुमत प्रणाली। सामान्य बहुमत प्रणाली के अंतर्गत किसी एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित किया जाता है, क्योंकि भारत में देखने को मिलता है कि जिस व्यक्ति को सबसे अधिक मत मिलता है वही निर्वाचित घोषित भी होती है। कई बार इस प्रणाली में बहुकोणीय मुकाबला भी हो जाता है यदि प्रत्याशी एक से अधिक हो तो। ऐसे भी कई उदाहरण हैं जहां 4, 5 या उससे भी अधिक प्रत्याशी होते हैं। इस स्थिति में संपूर्ण मतों के 50% से कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी विजय होता है। भारत में आम चुनाव में ऐसा ही देखने को मिलता है। सामान्य बहुमत प्रणाली जो है ब्रिटेन में भी है, अमेरिका में भी है, कनाडा और अन्य देशों में भी प्रचलित है, यानी भारत ने भी उन लोगों से ही जो है अपना लिया है। इस प्रणाली को हम फर्स्ट द पोस्ट सिस्टम भी कहते हैं और हमारी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसी प्रणाली से चुने जाते हैं। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आखिर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती क्या है और इसका क्या हमारे जो है
फ्रेंचाइजी में इसका क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अडल्ट फ्रेंचाइजी में इसका क्या महत्व रखता है। देखिए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली के तहत लगभग सभी वर्गों में प्रतिनिधियों के चुने जाने का प्रयास किया जाता है, ताकि कम से कम हर वर्ग की समस्या की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित होता रहे, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। देखिए, अगर हर क्षेत्र के व्यक्ति जो चुने नहीं जाएंगे तो उस क्षेत्र से जो है समस्याओं से सरकार अवगत नहीं हो पाएगी, क्योंकि कहते हैं जो भी कोई क्षेत्र के व्यक्ति चुने जाते हैं तो उस क्षेत्र के वो प्रतिनिधि ही होते हैं और उस क्षेत्र के जो समस्याओं से वो भली भांति उनको ज्ञान होता है। इसलिए हर क्षेत्र से चुना जाना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और इस प्रणाली में कोई भी समूह, चाहे वो राजनीतिक दल के हो या फिर हित समूह, अपने मतदाताओं की संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व निर्वाचित करवा सकता है। कहते हैं इसमें सबसे पहला विचार जे.एस. मिल्स ने साफ शब्दों में इस बात को प्रेजेंट करने की कोशिश भी किया था कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एक महान समर्थक थे। उनको ये मानना था कि बहुत अच्छा है और उनके शब्दों में ये बात साफ कही गई थी कि किसी भी वास्तविक लोकतंत्र जिसमें समानता पर बल दिया जाता है, किसी भी अथवा प्रत्येक वर्ग को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इस वर्ग के मतदाताओं का बहुमत प्राप्त होगा उसको बहुसंख्यक प्रतिनिधि चुने जाएंगे, लेकिन जहां अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाताओं की संख्या कम होती है वहां उसके प्रतिनिधि भी बहुत ही कम ही होंगे। दूसरे शब्दों में इस निर्वाचन व्यवस्था में प्रत्येक राजनीतिक दलों को उतनी ही सीटें मिलती है जिस अनुपात में से मत प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए सामान्य बहुमत व्यवस्था में यह कई बार देखा गया है कि एक दल को विधानमंडल में सीटों तो अधिक प्राप्त होती है लेकिन उसे प्राप्त मतों का जो है प्रतिशत कम मिलती है, क्योंकि वहाँ जो है 50% से कम वोट पाने वाली भी निर्वाचित घोषित कर दिए जाते हैं। कभी कभी सामान्य बहुमत प्रणाली में ऐसा भी देखने को मिला है कि एक विधानसभा क्षेत्र में किसी भी पार्टी को सीटों तो बहुत मिल जाती है किंतु उसके वोटों का जो प्रतिशत अपेक्षित बहुत कम होती है। यहाँ तक कि 50% भी कम प्राप्त मतों के बावजूद भी वह पार्टी सीट जीत लेती है। 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कुल 46% वोट मिले थे, जबकि उसे 522 में से सिर्फ 351 सीटें ही प्राप्त हुई थी और यह वोटों का प्रतिशत जो 50% कम था, जबकि सीटें 66% मिल गई थी। और इस कमी के अनुपातिक चुनाव प्रणाली द्वारा सुधारने का प्रयास भी किया जा सकता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होती है एकल संक्रमण मत प्रणाली, कहते हैं इसे हायर सिस्टम अथवा आंध्र योजना के नाम से भी जाना जाता है और इस प्रणाली के अंतर्गत एक मतदाता केवल एक ही मत देने का अधिकार होता है, यानी एक मतदाता सिर्फ एक ही वोट देने का अधिकारी होता है, किंतु यदि वह चाहे तो अपने इस वोट को किसी दूसरे प्रत्याशी को भी बदल कर दे सकता है। इसके लिए उसे मत पत्र पर अपनी जो है वैधता दर्ज करनी पड़ती है और यह प्रणाली निम्न विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रणाली में 3 अथवा उससे अधिक प्रत्याशी का होना आवश्यक होता है। दूसरा होगा ये कि एक मतदाता जो है वैधता क्रम में एक ही वोट को कई प्रत्याशी को भी दे सकता है, किंतु उसके लिए उसे मतपत्र में 1, 2, 3 अथवा इससे आगे तक अपनी इच्छा अनुसार वैधता जो निर्धारित करनी होती है। मतदाता अपनी सभी वैधता एक ही प्रत्याशी के आगे नहीं लिख सकता है। उसके पश्चात हमारा अगला पॉइंट घ है, जिसमें वैधता क्रम में सबसे ऊपर आने वाली प्रत्याशी को ही उसका जो है वोट मिलता है, किंतु यदि किसी स्थिति में 2 प्रत्याशी बराबर मत प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रत्याशी को वोटा जो होता है कोटा निर्धारित करती है, यानी कोटा से किया जाता है। उस कोटे के आधार पर जिसकी वैधता सबसे पहले आती है उसे वोट मिल जाता है। कोटा अगर निम्नलिखित सूत्र द्वारा निर्धारित की जा सकती है, जैसे कि कोटा है और आप देखोगे डाले गए कुल मतों की संख्या +1, कुल संख्याओं की संख्या +1। तो इसमें अगर आप देखोगे तो कोटा के रिगार्डिंग जो होगा डाले गए कुल मतों की संख्या बटा कुल सीटों की संख्या +1, तो +1 नीचे लेना है और उसके बाद जो है इसको +1 ऊपर रखना है। मान लीजिए किसी चुनाव में कुल प्रत्याशी की संख्या 3 है और कुल डाले गए मतों की संख्या जो है 20,000 है, तो कोटा क्या होगी? देखिए कोटा क्या होगा, ऊपर हमने 20,000 ले लिया और नीचे जो है 3 + 1 ले लिया, यानी टोटल कितना हो गया 4। 4 से हमने इसको डिवाइड किया, कितना आया? ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया देख लो, यहाँ पर आ गया 5,000, लेकिन 5,000 में हमने एक प्लस भी तो करना है, तो 1 प्लस करके हमने 5,000 1 वोट कर दिया। तो कभी कभी
यदि कोई प्रत्याशी उस कोटे को नहीं पहुंच पाते हैं तो उस कोटे को खाली से छोड़ दिया जाता है और चुनाव की यह प्रणाली जो है राज्यसभा के प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए अपनाई जाती है। और यही प्रणाली भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भी अपनाई जाती है, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये जो कोटा का जो सोल्यूशन है वो इंग्लिश में नहीं था, तो जो है इंग्लिश वाले बच्चे भी इसको हिंदी से नोट कर सकते हैं कि इस तरह से जो है हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है सीमित मत व्यवस्था। कहते हैं यह व्यवस्था अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एक अन्य पद्धति है और इस व्यवस्था के अंतर्गत बहु सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। इसमें कम से कम 3 प्रत्याशी होते हैं तथा एक मतदाता एक प्रत्याशी को एक वोट दे सकता है। इसके बाद हर मतदाताओं को जो है सीटों के जो है अनुसार वोट घटते जाते हैं। उदाहरण के लिए किसी निर्वाचन क्षेत्र में 4 सदस्यों को चुना जाना है तो ऐसे मतदाता चाहे तो 2 या 3 प्रत्याशियों को अपना जो है वोट डाल सकता है, किंतु वह अपने 5 वोट सिर्फ एक ही प्रत्याशी को नहीं दे सकता। ऐसा इसलिए भी किया जाता है कि अल्पसंख्यक वर्ग से कम एक प्रत्याशी का स्थान सुरक्षित बनाया जा सके और इस तरह उन 5 में से कम एक सीट के जो है अल्पसंख्यक वर्ग को प्रतिनिधित्व के लिए सुरक्षित हो जाती है। और इस प्रणाली के अधीन यदि एक सीट के लिए 2 सदस्य चुनाव लड़ रहे हों तो उसमें सबसे अधिक मत प्राप्त होंगे उसे विजय घोषित कर दिया जाएगा। किंतु यदि 2 या 2 से अधिक प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और उनमें किसी भी बहुमत प्राप्त नहीं किया है तो इस चुनाव को पुण्य कराया भी जाता है, जो द्वितीय मत प्रणाली के द्वारा कराया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि चुनाव के कुछ ही दिनों बाद मतदाताओं को पुण्य वोट डालना पड़ता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक इज अदर मिनोरिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो व्हाट यू मीन टू द अदर मिनोरिटी हियर? Apart from proportion to the representations and some other electoral method has also been to be devised to ensure the adequate representation to the minority group in the legislature. This system of minority representation are flowing. The first point here is a cumulative voter system. According to this system, a voter has a many votes as the number of seats in the constituency. The voter has an option. He or she can be cast vote for all the candidate or concentrate all his or her vote for just one candidate. For example, if 5 members are to be selected, their voter may be give his or her vote to be only one candidate or distribute it among a few or all candidate. This system is therefore many provide as a opportunity to the well-organized minority to be elected its representative by the accumulating all its votes in favor of one candidate. The second point here is a limited vote plan. This system is adopted in the multi-member constituency where is the minimum of 3 candidates are to be elected. Under this system, every voter can vote for more than one candidate, but he or she cannot vote for all the candidates, and that is why it is known as the limited vote system. For example, if there are 6 seats as a constituency, every voter will have a right to be vote only 4 candidates. The voter has to be vote to different candidate of his or her choose, but he or she cannot be vote for more than 4 candidates. हमारा जो अगला टॉपिक आया है अन्य अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व प्रणाली। देखिए ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा कि अन्य अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है। कहते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अतिरिक्त विधानमंडलों के अल्पसंख्यकों के समूचे प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए कुछ अन्य तरीके भी निकाले हैं। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की यह प्रणाली कुछ इस प्रकार दर्शाई जाती है। पहला तो यही दर्शाती है कि बहुसंख्यक मत प्रणाली। इस प्रणाली में मतदाता जो है उतने ही मत देने का अधिकार रखता है जितनी निर्वाचन क्षेत्र में सीटें निर्धारित होती है। इस प्रणाली में मतदाताओं के पास विकल्प होते हैं। कोई भी महिला अथवा पुरुष मतदाता अपने सभी मत प्रत्याशियों में बांट सकता है या फिर सारे के सारे मत एक ही प्रत्याशी को भी दे सकता है। उदाहरण के लिए यदि एक निर्वाचन क्षेत्र में 5 सदस्य चुने जाते हैं तो मतदाता अपने 5 मत 5 प्रत्याशियों में बांट सकता है या फिर 5 मत एक प्रत्याशी को दे सकता है। इस प्रकार इस प्रणाली में एक संगठित अल्पसंख्यक समूह अपने मतदाताओं में जो है ग्राम सहमति बनाकर अपने प्रत्याशी के पक्ष में सारे मत जो है दिलवा कर उसे
जितवा भी सकता है। तो ये बहुत साधारण मेथड है जिसमें कोई भी प्रत्याशी आसानी से जीत सकता है। उसके पश्चात सीमित मत प्रणाली कहते हैं, यह प्रणाली उन निर्वाचन क्षेत्र में अपनाई जाती है जहाँ 3 या 3 से अधिक सदस्य का चुनाव होना होता है। इसमें एक मतदाता एक से अधिक प्रत्याशियों को मत दे सकता है, परंतु सभी प्रत्याशियों को नहीं, इसलिए इसे सीमित मत प्रणाली भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में 6 सीटें हैं तो प्रत्येक मतदाता 4 प्रत्याशियों को मत दे सकता है, ना कि किसी एक प्रत्याशी के सारे मत। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर द सेकेंड वॉलेट सिस्टम। व्हाट यू मीन टू सेकेंड वॉलेट सिस्टम हियर? इन द इलेक्शन इन there are only 2 candidates contested election for the single seat. The one who scored a clear majority at least 50% plus 1 is declared selected. But when there is a more than 2 candidates, it may be a case that none of the candidates score on a absolute of majority. In this case, second ballot is headed, which means to vote are again cast after few days. In this second ballot, only 2 candidates who had ensured the maximum the member of vote in the first poll remain in the field. After voting one who is scored more than 50% of vote in the declared elected. There is a most important here. For example, in a constituency, 3 candidates are contesting. There is an election. The total number of the vote polled are the 12,000 vote. The candidate A is short to the 5,000 vote. There is a candidate B is secured to the 4,000 vote and candidate C is the 3,000 vote. In such a situation, no candidate get a seat or majority than 6,001 votes, which is a necessary holding of second ballot. The candidate in the case of candidate C who has scored least number of votes is a dropped. As such, there is a contest now remaining is a between A and B. If B secure the majority at the second poll, then a B and not a is the declare of successful. This system is a practice is the French for the election and president and national assembly also. उसके पश्चात हमारे समक्ष पुण्य मतदान प्रणाली। देखिए, पुण्य मतदान प्रणाली होती क्या है? कहते चुनाव में यदि किसी सीट के लिए 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हो तो जो है सपोज बहुमत 50% प्लस 1 प्राप्त करने वाले प्रत्याशी विजय होता है, ठीक है। परंतु 2 या 2 से अधिक प्रत्याशी होने पर ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी प्रत्याशी को सपोज बहुमत न मिला हो और इस स्थिति में पुण्य मतदान कराया जाता है। इस पुण्य मतदान में अधिकतम जो है मत प्राप्त करने वाले 2 प्रत्याशी के लिए मतदान किया जाता है। मतदान के बाद 50% से अधिक मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी विजय होता है। उदाहरण के लिए अगर एक बात देखें, यदि किसी विधानसभा सीट के लिए 3 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे और इसमें कुल जो सीट थी जो वोट डालने वाली थी वो थी 12,000 वोट डालने थी। प्रत्याशी ए को जो है 5,000 वोट मिला है, प्रत्याशी बी को 4,000 मिला है, प्रत्याशी सी को 3,000 वोट मिले हैं। तो इस स्थिति में किसी प्रत्याशी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, जो कि 6,001 था, वोट नहीं मिल पाया है। अंततः पुण्य जो है मतदान अवश्य हो जाता है। प्रत्याशी सी जिसे सबसे कम वोट मिलते हैं को अलग करके प्रत्याशी ए और बी के दोनों मतदान कराया जाता है। यदि पुण्य मतदान में बी को अधिक मत मिलते हैं तो वह विजय होता है। यह प्रणाली फ्रांस में राष्ट्रपति और राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन के लिए उपयुक्त किया जाता है, जो कि काफ़ी मानने में इम्पोर्टेंट भी रहता है और वहाँ पर मतदान करने की प्रणाली भी है। तो इसी के साथ जो है हमारा व्यास मताधिकार जो थी चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट था, तो उसको समझा भी होगा, सोचा भी होगा और जाना भी होगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। आगे का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसमें तो 2 बातें इंपॉर्टेंट होती है। पहला तो ये कि ये वीडियो जितना हो सके दूसरे बच्चों तक भी पहुंचाने के लिए आपको अग्रसर होना है, और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये रहता है कि अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर आप चैनल को दोबारा देखना चाहोगे और यूट्यूब पर सर्च करोगे तिरपान स्टडी सेंटर तो आ तो बेशक ली जाएगा, लेकिन वहाँ पर जो है यूट्यूब जो है नाम वहाँ गलत कर देगा, तिरपान की जगह त्रिपुरा कर देगा, जो रिसर्च में नहीं आ पाएगा, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेने में ही भलाई है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो इससे जो भी आप टॉपिक देखना चाहोगे इसके मेन लिंक पे आपको मिल जाएगा, जहां पर आपको हर एक वीडियो जो है आसानी से उपलब्ध रहेगा। इसमें जो भी वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा उसको देख के समझ के जो है आप एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो सकते हो।